Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. We have to start the topic, the ratio analysis, and I will revise the topic, previous topic of the yesterday stuff for those students who have missed it or they want to improve their knowledge and other things there. So here in ratio analysis, okay, the topic is ratio analysis. The purpose of ratio analysis is to make a comparison or find out current position of a company or business with other companies. You have to compare. You will use this ratio analysis topic to compare with other companies. अगर आप लोगों के यहाँ पे कोरोना ना हो तो ऑनलाइन क्लासेस ना होती ना तो मैं डेफिनेटली आप लोगों को प्रोजेक्ट देता. In project, definitely you have to go to a stock market. In stock market you have to collect different companies prospectus and you have to find out ratio analysis and present it to me. But right now due to online classes it is not possible. Anyway, okay, the shareholders use ratio analysis to comparison and between different firms to find out the profitability and liquidity position of the company. And according to that, they have to decide that where they invest and where they not invest. The first ratio called profitability ratio. There are three ratios: profitability, liquidity ratios, efficiency, and shareholder ratios. There are four types. The first type called profitability ratios. In profitability, a shareholder generally evaluates the profit of their investment or how much company earn profit. Because as a shareholder, I want to know that if a company get more profit, it's mean that company is good, company is secure, and I will get a more dividend. Second, first ratio is called gross profit margin. The formula is called GP, gross profit divided by sales into 100. And you know very well how will you find out gross profit. You will find out gross profit by sales less cost of goods sold is equal to your gross profit. And for cost of goods sold, you have opening inventory plus purchases minus closing inventory. Opening plus purchases minus closing, cost of goods sold aa gaya. And now you have to find answer of it. And now there are different companies, company A, company B, company C. Like PTCL, you have to compare with the Ufone or Mobilink. One thing always remember that you always compare the companies, a ratio analysis who belong to same industry. Example, आप मोबिलिंग को टोयोटा या होंडा के साथ कंपेयर नहीं कर सकते. आप मोबिलिंग को यूफोन के साथ कंपेयर करेंगे. अब टोयोटा कंपनी जो है वो अपने को कंपेयर करेगी मर्सिडीज के साथ या टोयोटा के साथ या होंडा के साथ. अब वो कंपेयर नहीं करेगी जनाब उसके इन्वेस्टर जो है पेप्सी के साथ या कोक के साथ. ठीक है, ये बात याद रखिएगा कि हमेशा वो कंपनीज हमेशा वो कंपनी जो एक ही इंडस्ट्री से बिलोंग करती हो वही कंपेयर करेगी. अच्छा, अब आपके पास कंपनी ए का जो है ग्रॉस मार्जिन निकलता है 50% एंड कंपनी बी का 70%. So which company is good? The first position say that company B is much better than company A because company B's gross profit margin is much higher. The reason behind that, maybe companies की sales ज़्यादा हो सकती हैं, maybe company cost of goods sold कम हो सकता है. But if we have to apply the same concept on company B, it's mean that company B A की sale जो है वो कम है और company का cost of goods sold क्या है ज़्यादा है, जिसकी वजह से उसका gross profit margin कम आया. सेकंड रेशियो जो है वो आगे बात आती है नेट प्रॉफिट मार्जिन.
NP divided by sales into 100. And how will you find out the NP? You will find out the NP by gross profit minus expenses is equal to your net profit, and you have to subtract net profit divided by sales into 100. The answer will be in percentage, and you have to need to compare two companies gross profit and the margin to find out either which company is better. Okay, if company A 40% answer is there and company B 60%, it means that company A की sales कम हो सकती हैं, company didn't control on their expenses, and same opposite concept of company B where the net profit margin is much higher than company A. The third ratio come here, that's called ROCE, return on capital employed. Net profit divided by capital into 100, and the capital include here called example if a limited company is there, then shares and preference shares and ordinary shares. But if you have to compare the company of a partnership and sole trader, it means that the simple capital, the capital invested by the owner. If a sole trader can compare his business to another business, then he can use his own capital. But if limited company generally used to find out how much they have to get earn on their investment, they have to use the word ordinary shares and preference shares. And if company A, we say that, क्या बोल रहे अस्सलाम हैं? वालेकुम सर जी। एक्सक्यूज मी सर। सर जी ये कैपिटल में सर क्या नाम है, वर्किंग कैपिटल भी है नहीं जो नहीं फिक्स वो के नहीं, बाद वो यूज करते हैं और इक्विटी फिक्स सेक्शन वाला, कैपिटल भी है, तो इसमें ये कौन से आएंगे सर? इक्विटी सेक्शन वाला। अच्छा, सम टाइम यहाँ पे अच्छा कैपिटल फाइंड करते हुए ठीक है आप सर। एवरेज का इस्तेमाल करते हैं। ओपनिंग कैपिटल प्लस क्लोजिंग कैपिटल डिवाइड बाय 2 करेंगे तो वो कैपिटल की वैल्यू जो है आप यहाँ पे पुट कर सकते हैं, वो लिखा होगा इजीली। अच्छा, यूनिट जो फॉर्मूला है वो है जी एक्सपेंसेस जी ठीक सेल रेशियो। ठीक इट्स मीन दैट कि आपकी जो सेल्स हुई हैं वो कितने एक्सपेंसेस पे करने के बाद सेल्स हुई हैं। सिंपली आप उसको एक्सपेंसेस डिवाइड बाय सेल्स इनटू 100। अगर कंपनी डिफरेंट कंपनीज की डिफरेंट रेशियोज आ सकती हैं, ये शो करता है कि बेसिकली आपने अगर एडवर्टाइजमेंट के ऊपर, रेंट के ऊपर, वेजेस के ऊपर, अदर एक्सपेंसेस के ऊपर ज्यादा पैसा लगा दिया है लेकिन आपकी रिटर्न रेवेन्यू कम आया है, इट्स मीन दैट कि आपका अपने एक्सपेंसेस पे कंट्रोल नहीं है, कंपनी अच्छी नहीं है। लेकिन वो कंपनी जिसने कंट्रोल किया हुआ है, डेफिनेटली वो कंपनी बेटर है बिकॉज उसकी एक्सपेंस कम है लेकिन उसकी प्रॉफिटेबिलिटी ज्यादा है, परसेंटेज ज्यादा है। सर। इसमें तमाम तरह एक्सपेंसेस हाँ आएंगे जी। सर, डायरेक्ट और अच्छा, इनडायरेक्ट तू दोनों सर? यहाँ पे क्या नाम है यार तुम्हारा, आके भाई, आपने आकिब सर। पहले भी बात की थी डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में, पहले याद होगा आई थिंक सो। Direct expenses generally we जी have to जी use in manufacturing stuff. In manufacturing, direct expenses जो है, जिस तरह कैरेज, सर जिस तरह इधर। सुनो, कैरेज इनवर्ड है ना, कैरेज इनवर्ड, दैट कम इन द जी सर। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, दैट इज डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है, लेकिन जो रेंट पे सर कर रहे इधर हैं, सवाल वेजेस में पे, कोई ट्रेडिंग अकाउंट भी? जी आपको क्वेश्चन में ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट गिवन होगी, आपने उसके अकॉर्डिंगली जो है एक्सपेंसेस फाइंड करने हैं और बाकी चीजें करनी है। Okay, the second ratio here is called liquidity ratio. Ability of the firms to pay back its current liability. कि कंपनी इस काबिल है कि अपनी लाइबिलिटी पे कर सके, और हाउ क्विकली अ फर्म्स कन्वर्ट इट्स एसेट इनटू कैश। बिकॉज क्रेडिटर जो है, अकाउंट पेएबल, जब बैंक जो है वो किसी भी टाइम पे आपसे पैसा वापस मांग सकते हैं, तो आइदर आपके पास इतने एसेट्स हैं कि आप उनको फॉरेन कैश में कन्वर्ट करके लोन पे कर दें या कुछ भी कर दें, तो उसके लिए क्रेडिटर्स, बेसिकली ये रेशियो जो है ना आपकी लिक्विडिटी रेशियो, ये चेक कौन करता है? ये चेक करते हैं आपके क्रेडिटर्स, बैंकर्स या फाइनेंसिंग कंपनीज।
ये बेसिकली आपकी लिक्विडिटी चेक करती है कि कंपनी इस पोजीशन में है कि वो अपना लोन वापस कर सके। और जब आप लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो वो आपसे लिक्विडिटी चेक करते हैं। वो चेक करते हैं कि आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट पॉजिटिव आएगी या नेगेटिव आएगी, प्रीवियस पासपोर्ट अपनी जो कैश फ्लो स्टेटमेंट वो शो करवाएं। ओके, फर्स्ट रेशियो जो है वो करंट रेशियो है, करंट एसेट्स डिवाइड बाय करंट लायबिलिटीज। आंसर विल बी इन रेशियो नॉट परसेंटेज। And here I can give quote example here. If company have 1,000 rupees current assets and their liability is 2,000, आपका आंसर है 0.5:1। लेकिन अगर हम यहां पे बात करें, आपके पास 3,000 के एसेट्स हैं और 1,000 रुपए की लाइबिलिटी है, तो आपकी रेशियो कितनी होगी? 3:1। आपकी लाइफ, मैंने बताया था कल आपको कि इन यस्टरडे क्लास आई टोल्ड यू दैट के जो करंट रेशियो विल बी बिटवीन 1 and 3, देन यू कैन इजीली गेट द लोन। अगर आपके पास ज्यादा रेशियो होगी तो डेफिनेटली बैंक एंड अदर फाइनेंसिंग कंपनी नेवर फाइनेंस यू। दे टोल्ड यू दैट के एडवाइस यू दैट के फर्स्ट ऑफ ऑल स्पेंड योर ओन मनी एंड देन यू हैव टू अप्लाई फॉर द लोन। सो आपको अपनी लिक्विडिटी इस पोजीशन में बनानी है। इसका मतलब ये नहीं है क्योंकि फाइनली आपने सारे एसेट्स जो हैं वो कैश वो शो नहीं करवाने अकाउंटिंग में अपने बुक्स के अंदर कि हमारा पैसा पड़ा हुआ, व्हाई वी हैव टू शो आवर कैश इनटू बुक बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट व्हाटएवर, बिकॉज फ्यूचर में जाकर वही अगर जो अपनी चीज छुपाई होगी ना वो फिर करप्शन में आ जाएगी, या हम बात करते हैं कि ऑफशोर कंपनी में आ जाएगी। कि आपके पास फाइनेंसिंग, आप ठीक है आपके पास पैसे नहीं है, आप लोगों ने कोई प्रॉपर्टी परचेज कर ली है, बिल्डिंग परचेज कर ली है, तो इनकम टैक्स वाले आपके पीछे लग जाएंगे। क्या आपकी इनकम तो है नहीं इतनी, पैसा आपके पास था नहीं, आपने कहां से परचेज कर ली? तो आपको जितने भी एसेट्स हैं वो प्रॉपर तरीके से डिक्लेयर करने पड़ते हैं कि हमारे पास ये चीजें हैं, अकॉर्डिंग देयर दे हैव टू प्लान आउट। ओके, सेकंड रेशियो जो है वो एसेट कैश रेशियो, करंट एसेट्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक डिवाइड बाय करंट लायबिलिटी। I told you that stock, why a company या banks subtract closing stock value from current assets? The answer is very simple. Stock is the commodity that is not easily converted into cash at the spot. So creditors generally subtract closing value of closing stock from current assets and then they have to use that formula and find out the ratio. अगर आपके पास सर क्विक रेशियो भी यही है सर, एसेट रेशियो इसको क्विक रेशियो ही बोलते हैं हम लोग। जी सर। ओके, थर्ड रेशियो आ जाती है, थर्ड टाइप है रेशियो एनालिसिस की, वो है एफिशिएंसी रेशियो। इन एफिशिएंसी रेशियो देयर आर थ्री फार्मूलाज। द फर्स्ट वन इज कॉल्ड स्टॉक टर्नओवर। द फार्मूला इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड डिवाइड बाय एवरेज स्टॉक। There is no multiply 100 नहीं करना आप लोगों ने, simply cost of goods sold divided by average stock, and you have to know that कि how will you find out cost of goods sold? Opening stock plus purchases minus closing stock, and the formula of finding out average stock is opening stock plus closing stock divided by 2. So in that way you सर ये टर्नओवर ये टर्म बहुत में यूज है। टर्नओवर का मतलब क्या सर? टर्नओवर मतलब सेल्स को बोलते हैं, सिंपल टर्नओवर आ जाए, टर्नओवर वो सेल्स को बोलते हैं हम लोग। जी जी। लेकिन स्टॉक टर्नओवर आ जाए मतलब यहाँ पे ये है कि कंपनी कितनी जल्दी स्टॉक को उस फिनिश गुड में कन्वर्ट करके बेच देती है। मोर टाइम बेचेगी तो डेफिनेटली कंपनी अच्छी है। तब उस चीज में इन्वेस्टमेंट ना करें, उस चीज स्टॉक में इन्वेस्टमेंट ना करें जो डेफिनेट सेल ना हो रही हो, तो आपकी स्टॉक टर्नओवर जीरो हो जाएगी, नेगेटिव चली जाएगी। तो हमेशा बिजनेसमैन ये चीज देखते हैं कि हम उस जगह में पैसा इन्वेस्ट करें जहां पे हमें रिटर्न अच्छा हो जाए। The next ratio is debtors day ratio. This ratio generally show that how many days your debtor account receiver clear their account. How quickly company can get from the debtors. Debtors divided by sales into 365. And there are different answers are given. The minimum answer is better than two maximum answer. So next ratio is creditors day ratio. Creditors divided by सर जी बोले। बाज क्वेश्चन में मंथ भी पूछा गया तो फिर सर ये 12 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है सर? नहीं भाई, वो पर मंथ की बात है कि तो मल्टीप्लाई 12 कर दो। अच्छा सर। लेकिन अमूमन जो है जनरली जो प्रैक्टिस की जाती है पूरी दुनिया के अंदर वो 365 यानी डेज में कन्वर्ट किया जाता है, मंथ में नहीं करते हम लोग।
सर इधर बुक में जो काफी क्वेश्चन है उसमें मंथ में दिए गए थे सर। चलो मंथ में कर लें आप। अगर आपने ये डेज भी कर लिया उस लिहाज से, तो इसको आप क्या करेंगे, एग्जाम्पल यहाँ पे क्या करते हैं आप, हम कहते हैं आंसर जो है आपके पास आता है 160 डेज, इसको डिवाइड बाय 12 कर 30 कर दें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, उसके मंथ आ जाएंगे, 5 महीने और 3 दिन, जितने भी बनते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहां पे इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं 12 से, तो वो ऑटोमेटिकली पर मंथ आ जाएगा। ओके, द नेक्स्ट थिंग इज दैट, हमारे पास जो नेक्स्ट रेशियो जो आज का टॉपिक हमारा है रेशियो एनालिसिस में, वह शेयर होल्डर रेशियो। शेयर होल्डर रेशियोज बेसिकली कि इन्वेस्टर जो है, जो शेयर होल्डर होता है कंपनी का, वो चेक करता है कि उसकी कंपनी की पोजीशन इस टाइम पे क्या चल रही है। पहला जो स्टॉक मार्केट के थ्रू बेसिकली हम लोग जो है वो शेयर की प्राइस को निगोशिएट करते हैं, बाइंग एंड सेलिंग शेयर करते हैं। पहली रेशियो जो है वो अर्निंग पर शेयर की है, अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर, इसको हम बोलते हैं ईपीएस। अच्छा, ये किस तरह निकलती है, बेसिकली का फार्मूला क्या होता है, आपने निकाला नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर इन टैक्सेस, कॉमा डिबेंचर इंटरेस्ट, कॉमा एंड प्रेफरेंस डिविडेंड। सर ये बिफोर आएगा आफ्टर आएगा सर जी? बिफोर, बुक में आफ्टर आफ्टर है सर जी। चलो सॉरी सॉरी बाय मिस्टेक यार, आफ्टर है सर। net profit after taxes, debenture interest and preference dividend divided by total number of ordinary shares, total number of ordinary shares। अच्छा, बेसिकली ये क्या शो कर रहा होता है कि इसमें डेफिनेटली कंपनी शेयर होल्डर कंपेयर करते हैं कि एक साल की अर्निंग कितनी निकलती है, उसको अंडरस्टैंड करने के लिहाज से। तो बेसिकली कंपनी की बहुत इंपॉर्टेंट रेशियो है जो आपको शेयर होल्डर को मोटिवेट करती है दैट दे हैव टू इन्वेस्ट। अच्छा, अब इसको एज अ शेयर होल्डर जो है आकिब की बात करते हैं, या किसी आम बंदे की बात कर लेते हैं, गुजर साहब की बात करते हैं, जो एक आम से बंदे हैं, उनको खास अकाउंटिंग के बारे में पता नहीं है, बड़े इन्वेस्टर नहीं है, तो वो क्या करते हैं, वो कहते हैं भाई साहब मुझे सीधी अल्फाज में बताएं कि मुझे कितना मिलेगा पर शेयर। उसे बोलते हैं हम सेकंड रेशियो जो है, उनके लिए बनाई जाती है प्राइस अर्निंग रेशियो, अर्निंग रेट। कि भाई आपके पास मार्केट प्राइस अर्निंग पर शेयर। पर शेयर डिवाइड बाय अर्निंग पर शेयर। ये आपने अर्निंग पर शेयर जो निकाल लिए किसके थ्रू, इसके थ्रू आप लोगों ने अर्निंग पर शेयर जो है यहां से निकाल के उसको प्राइस अर्निंग रेशियो पे डाल दिए, इसको हम पी रेशियो भी बोलते हैं। अच्छा, जिस कंपनी की पी रेशियो जो है, अर्निंग प्राइस अर्निंग रेशियो ज्यादा होगी, उस कंपनी के शेयर की डिमांड बढ़ जाती है। थर्ड जो है वो डिविडेंड यील्ड रेशियो है, कि मुझे भाई पर शेयर पे कितना प्रॉफिट मिल रहा है,
dividend yield, gross dividend per share divided by market price per share, price per share. अब डिविडेंड डेफिनेटली ये किस तरह निकालेंगे आपके पास डिविडेंड निकल, आप एग्जांपल बात करते हैं कि कंपनी ने ऑर्डिनरी, यहाँ पे ऑर्डिनरी डिविडेंड की बात कर रहे हैं, रेफरेंस की बात नहीं कर रहे हैं, ऑर्डिनरी की बात कर रहे हैं। लेट्स सपोज आपके पास 1 लाख शेयर्स हैं और कंपनी ने 2 लाख डिविडेंड अनाउंस किया है, तो क्या करेंगे आप, 2 लाख डिवाइड बाई 1 लाख, तो क्या आ जाएगा डिविडेंड पर शेयर। फोर्थ रेशियो जो है, सेकंड लास्ट रेशियो है आपके पास, दैट इज कॉल्ड डिविडेंड कवर रेशियो। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्सेस एंड प्रेफरेंस शेयर्स, नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स एंड प्रेफरेंस डिविडेंड डिवाइड बाय ordinary dividend paid and proposed, total ordinary dividend, total ordinary dividend that include proposed plus interim. I hope so you remember the word interim and proposed. In limited companies that we discussed about that, and you find out the answers. The last ratio come in the capital structure ratio में आती है बस gearing ratio. Capital structure ratio which include gearing ratio. बेसिकली जब एक इन्वेस्टर पैसा इन्वेस्ट करता है या आपको कोई बैंक जो है लोन देता है, एट दैट टाइम दे आल्सो फील दैट, फाइंड आउट कि हाउ मच मनी कंपनी ऑलरेडी बारो फ्रॉम द डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस। अगर कंपनी डेफिनेटली बारो ज्यादा किया होगा तो मतलब ये है कि कंपनी की गेइंग रेशियो बढ़ जाएगी। जिस तरह एग्जांपल आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं तो किस गियर में एक्सीडेंट के चांस कम से कम होते हैं, पहले गियर में कि पांचवें गियर में? भाईजान पूछ रहा हूं आपसे कोई क्वेश्चन। पहले गियर में चांस कम होते हैं कि पांचवें गियर में? पहले में सर जी। पहले मतलब यहाँ पे ये है कि एक्सीडेंट के चांसेस कम होते हैं, जब मतलब ये है कि जितना गियर कम होगा कंपनी उतनी सिक्योर है। जी सर। कंपनी का गियर अगर ज्यादा लोन लिया होगा तो कंपनी अगर क्रेडिटर्स को पेमेंट ना कर सकी तो क्या होगा, कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है। जब कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है तो डेफिनेटली शेयर होल्डर का पैसा डूब जाता है, बिकॉज उस शेयर के पैसे से आप लोगों ने डिबेंचर्स क्लियर करने हैं और बाकी चीजें करनी होती हैं। तो इस वजह से क्या करते हैं हम लोग, इसमें लॉन्ग टर्म लोन्स करते हैं। इसमें फार्मूला क्या होता है, लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन प्लस करते हैं प्रेफरेंस शेयर्स, डिवाइड बाय ऑर्डिनरी शेयर्स
ordinary shares plus reserves plus preference shares प्लस करते हैं इसमें हम लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज डिबेंचर्स लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी डिबेंचर्स इसको डेफिनेटली आंसर कर लेते हैं और आंसर जो है आपके पास इसको हम डेफिनेटली परसेंटेज मल्टीप्लाई बाय 100 कर देंगे आप तो जितनी परसेंटेज कंपनी की कम होगी गियरिंग के लिहाज से तो मतलब उतनी कंपनी सिक्योर है और अगर जितनी कंपनी डेफिनेटली गियरिंग ज्यादा होगी परसेंटेज ज्यादा होगी 40% है 50% है 70% है तो सम टाइम अगर आप कंपनी का लोन वापस नहीं करते हैं तो मतलब यहाँ पे ये हुआ कि वो बैंक आपके ऊपर कंट्रोल कर लेगा और डेफिनेटली वो सारे के सारे जो काम करेगा एक्टिविटीज करेगा वो अपने ऑब्जेक्टिव को मीट करने के लिए करेगा तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चंस कंप्लीट हो रेशियो कंप्लीट हो गई हैं अभी आप क्वेश्चन करें वो 47.10 करें सर जी क्या कह रहे हैं सर जी जो रेशियो हमने पढ़े हैं तकरीबन 8 से 9 सर जी हाँ जी तो इनके सर कंपनी पे क्या इफेक्ट पड़ते हैं मतलब कोई बढ़े तो उसके क्या इफेक्ट है कोई कम हो तो उसके क्या इफेक्ट है सर काइंडली देखिए इसको भी थोड़ा मैंने बताइए आपको भाईजान पहले ही ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन बताया था कि अगर कंपनी के रेशियोज अच्छे नहीं है अगर जीपी मार्जिन जो है वो जिस तरह यहाँ पे मैंने बताया था कंपेयर किया था आपको डिफरेंट कंपनी के साथ कंपनी ए कंपनी बी के साथ कंपेयर किया था तो इस तरह की आप लोगों ने कंपैरिजन देना होता है कि जिस कंपनी के शेयर्स अच्छे हैं डिविडेंड बेटर मिल रहा है तो कंपनी अच्छी है ओवरऑल अगर रेशियो एनालिसिस को कंपेयर किया जाए तो वो कंपनी की इंटरनल स्ट्रेंथ को शो करती है और वीकनेस को शो करती है कुछ कुछ कंपनी ऐसे करती हैं कि वो विंडो ड्रेसिंग कर देती हैं विंडो ड्रेसिंग क्या होती है विंडो ड्रेसिंग इज बेसिकली क्या होता है कि आप अपने अकाउंट को बढ़ा चढ़ा के शो कर देते हैं ठीक है जब आप बढ़ाते चढ़ाते हैं तो क्या होता है आपके इन्वेस्टर को इनकरेज तो कर लेते हैं लेकिन अगर वही डॉक्यूमेंट जो है वो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट या टैक्स डिपार्टमेंट में चला जाता है तो डेफिनेटली आप पर टैक्स ज्यादा लगता है तो आपको अपनी विंडो ड्रेसिंग एक्यूरेट करनी चाहिए ऐसा ना हो कि आप विंडो ड्रेसिंग प्रॉपर करते हैं अंदर ब्लफ हो घपले हुए हो तो दैट क्रिएट प्रॉब्लम अभी आप क्वेश्चन करेंगे 47.10 सर कौन सा क्वेश्चन दोबारा बता दें 47 पॉइंट आप करें 10 47.10 करना है बच्चे क्वेश्चंस आप वही क्वेश्चन करने के बाद दिखाएं उसके बाद आपकी अटेंडेंस लगेगी और फिर आप जा सकते हैं देखिए अगर आप क्वेश्चन को खोलें तो वहां पे दो कंपनीज की फाइनेंशियल स्टेटमेंट गिवन है कंपनी एक्स और वाई की पहले आपके पास इनकम स्टेटमेंट गिवन है फिर आपके बैलेंस शीट गिवन है द फर्स्ट रेशियो रिक्वायरमेंट इज दैट यू हैव टू प्रिपेयर द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन सेकंड नेट प्रॉफिट मार्जिन थर्ड है एक्सपेंसेस रेशियो थर्ड जो है इन्वेंटरी टर्नओवर है देन आपके पास आरओसी है देन करंट रेशियो है एसेट टच रेशियो है डेटर्स डे रेशियो है क्रेडिटर्स डे रेशियो होगा अकॉर्डिंग दैट यू हैव टू डाउन इट do it and then understand the concept